Uh, the various types of data, what are the various data analysis tools, what is measures of tendency, mean, median, mode, what is measures of dispersion, right? And what and how we can analyze data and how we can study about data. In this unit, we will be talking about the another data. We will be talking about the arrays and how we can do various operations and how we can do data analysis using operations. So this is the unit 1 that we have already finished in the previous 2 classes. In this unit number 2, lesson number 3, as per the SLM of your syllabus, SLM, and this as per according to the syllabus, we will be using the library, NumPy library, which is being provided as an open source Python library. How we can use NumPy libraries to create arrays, how we can do different arithmetic operations using the NumPy library, how and what are the various indexing, slicing, and transposing techniques in the array. So starting with NumPy, hope I am audible to all of you. Okay, fine. Now, when we talk about NumPy, what is NumPy? See, Python is a programming language. We write instructions for computer to perform certain operations, right? And plain, if if I have a collection of products, collection of names of students, collection of marks of various students, so I have to write a particular set of operations, set of instructions to perform the operations on that data set, right? NumPy is a library. It is an open source Python library that provides inbuilt or pre-built functions that can be used on arrays, right? So if I say what the full form of NumPy, it means numerical Python. It is the basic Python library created in 2005 by Travis Oliphant. Travis Oliphant is basically the creator, is a software developer who created these inbuilt functions that can be used on large multi-dimensional arrays and matrices. This library has a collection of various mathematical functions. For example, finding out mean. I do not have to write the complete set of instructions. मेरे को फिर से स्टार्टिंग से प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है. अगर मुझे अगर मुझे 1000 या 10,000 या मिलियंस ऑफ डेटा सेट का एवरेज निकालना है, I can simply use the inbuilt function mean from the library Python. Now, there is a difference between list and arrays. List is a collection of items. Arrays is also a collection of items. The difference is list is a collection of different items, different data types. Arrays is a collection of same data type arrays, same data type items, right? Arrays are stored at a place. जो एरेज का डेटा है वो मेमोरी में कॉन्टिन्यूसली स्टोर होता है, जबकि लिस्ट में ऐसा नहीं है. लिस्ट का डेटा नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी स्पेस में स्टोर होता है. कॉन्टिन्यूस स्पेस पे होने की वजह से
जो प्रोसेस है एरेज का, जो भी हम अर्थमेटिक या कोई भी ऑपरेशन या स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन करते हैं एरेज में, वो थोड़ा सा फास्टर हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाता है, राइट? क्योंकि देखो सारा का सारा डेटा एक ही जगह पे है, तो जो टाइम लग रहा है अलग अलग डेटा पॉइंट से, अलग अलग मेमोरी स्पेस से डेटा को सर्च करने में, डेटा को एक्सेस करने में, वो रिड्यूस हो गया। इसीलिए जो हम कोई भी अगर टास्क करते हैं, कोई भी हम ऑपरेशन करते हैं numpy arrays को यूज करके, इट इज फास्टर देन दी लिस्ट. This behavior is called as locality of reference. Now, for example, you may get a question, what is locality of reference? So, locality of a reference is the behavior which says that numpy arrays are stored at one continuous place in a memory, right? So, the process can access and manipulate them very efficiently. So, this behavior is called as a locality of reference. You may get a question like, what is the full form of NumPy? So, the full form of NumPy is numerical Python. Who created NumPy? NumPy has been created by Travis Oliphant. Now, the objectives, why are we learning NumPy? Why are we learning this art of array manipulation? So, we have as the learning objective of this chapter, this lesson, this unit is how to use NumPy array. What are the different mathematical operations? How can we convert lists into arrays, and what are the different functions? Now, let's start with the creating of an array. NumPy is a library. So, I have used the function import with NumPy, right? I have two variants. मैंने यहाँ पे NumPy को यहाँ पे NumPy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और इसको डायरेक्टली यूज किया एरे मेथड के थ्रू, एरे फंक्शन के थ्रू, जिसके थ्रू हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर रहे हैं. नाउ दिस एरे इज हैविंग 5 एलिमेंट्स, राइट? I can use an alias as NP or any other which I am comfortable with. और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे यूज किया as an object and use the function array to create it, right? If I want to check the version, which version we are using of NumPy, we have the function np dot underscore version. Now, let me show you this first example, how we are creating it. I'm using an online Python compiler. First, हम import कीवर्ड से पहले NumPy लाइब्रेरी को में import कर रहे हैं. एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया, फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट एरे. अब हमको एरे किससे क्रिएट करना है? NumPy से. क्या फंक्शन है? एरे. आपको ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट. I think this screen is visible to all of you. Let me check what is visible. Now this Python compiler is visible to all of you. So fine. यहाँ पे मैंने एक ऑनलाइन पाइथन का कंपाइलर खोला है, ठीक है. इसमें मैंने पहले इंपोर्ट को यूज किया, लाइब्रेरी है NumPy, राइट. अब मुझे क्या बनाना है? एक एरे क्रिएट करना है. तो एरे क्रिएट करने के लिए बना लिया माय फर्स्ट एरे. किससे क्रिएट होगा?
लाइब्रेरी से, numpy लाइब्रेरी से क्रिएट होगा। मेथड यूज किया एरे, ब्रैकेट लगाया, एक ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब मैं एक एरे क्रिएट कर रही हूँ इंटीजर्स का, तो आई एम क्रिएटिंग एन एरे ऑफ 6 इंटीजर्स, राइट। उसके बाद हम इसको प्रिंट कराते हैं एंड रन। अब देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपके पास क्वेश्चंस देखो कैसे आ सकते हैं। अगर मैं आपके इंटरनल असेसमेंट की बात करूँ तो आपके पास किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज इट्स आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 इसका आउटपुट होगा। आपके पास ऑप्शन क्या क्या होंगे, हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो 1 2 3 4 5, आपके पास ऑप्शन हो सकता है 1 2 3 4 5, आप 6। एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि भैया जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं तो यहाँ पे ये आउटपुट में भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, यहाँ पे इस प्रोग्राम में, इस कोड में कोई एरर हो गई। सपोज यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया है माई फर्स्ट एरे और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रही हूँ माई एरे, तो इसका आउटपुट क्या होगा, एरर, देयर इज एन एरर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो फर्स्ट एरे क्रिएट किया, अब प्रिंट करा रही हूँ मैं माई एरे, ये वेरिएबल तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो आएगा एरर। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं कि आपका जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं और उसका क्या आउटपुट होगा। है numpy, इसको मैं एक नया नाम दे रही हूँ, numpy as np। np is what, np is an alias, I am calling numpy with another name np, right। यहाँ पे now I am running it again। आप फिर दोबारा देखिए यहाँ पे एरर किस तरीके की आई है, क्योंकि हमने numpy का नाम बदल के np कर दिया, तो अब पूरे प्रोग्राम में मुझे इसे np से ही कॉल करना पड़ेगा। मैं कोई भी लाइब्रेरी के फंक्शन को कॉल करूंगी तो मैं उसको np से कॉल करूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दिस इज द एरर, कि एरर क्यों आई है, क्योंकि हमने इस numpy का नाम चेंज करके np कर दिया। नाउ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम वुड बी, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं तो हमारा ये आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5 6, राइट। यहाँ तक किसी को कोई कुछ पूछना है, आप एक छोटा सा अपने अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखो कि आप कैसे लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हो और एक एरे क्रिएट करते हो। उसके बाद मैं एक सेकेंड एरे बना रही हूँ, माय सेकेंड एरे np डॉट एरे। इसमें अल्फाबेट्स ले रहे हैं हम, A B C, एक और दोबारा से मैंने C ले लिया। मैं इसको रन करा रही हूँ, प्रिंट माय सेकेंड एरे। So what is the second array here? Second array is this, A B C, right। इसी तरीके से हम थोड़ा सा इसमें और चेंज करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे ये डिफरेंट डेटा टाइप ले रहा है कि नहीं ले रहा। मैं यहाँ पे एक की जगह 1 ले देती हूँ एंड लेट अस सी व्हाट इज द आउटपुट हियर। तो इट इज टेकिंग अ डिफरेंट, सिंस यहाँ पे 1 इज अ स्ट्रिंग, यहाँ पे 1 जो है एक स्ट्रिंग है, तो इसने इसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया है। ठीक है, इसी तरह इस तरीके से मैं फर्स्ट एरे को चेंज करके देखती हूँ कि क्या यहाँ पे ए ले रहा है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एरे में सारे इंटीजर्स थे, सारे नंबर्स थे, वहां पे एक अल्फाबेट, एक कैरेक्टर नहीं कंसिडर हुआ है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं इसको स्ट्रिंग बनाती हूँ तो यहाँ पे ये एज अ स्ट्रिंग
कंसिडर कर लिया है, इसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया और फिर बाकी के बाद डेटा आइटम्स को प्रिंट करा दिया है। तो अभी आप लोग एक छोटा सा प्रोग्राम करोगे जिसमें आप एक एरे बना रहे हो, ये आप सबसे पहले इंपोर्ट numpy as np फ्रूट और मुझे कोई भी फ्रूट्स ले लेते, लेट्स स्टार्ट विद एप्पल, berries, cherries. Let me have another fruit, say guava, mango, and printing it. So what will be if I am printing it? Print fruit. So what will be its output? This will be its output. एरर तो नहीं आ रही है? आपके प्रोग्राम समझ में आया है कि नहीं आया? देख, अगर आपको ये बेसिक प्रोग्राम्स पहले समझ में आ जाएंगे तो आपकी जो बाद में, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, तो आई वाज टेलिंग कि आप लोग पहले इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम पे करके देखो, किसी को कोई भी एरर आती है तो अभी हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है? या कुछ ऐसा है जो किसी को समझ में नहीं आया है, ही और शी कैन आस्क। I'm giving you 2 minutes to do this program, these 2-3 programs on your laptop system or mobile, on wherever you are doing. एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि जब ये सिर्फ एक इंटीजर था, ये एरे जब इंटीजर था 1 2 3, तो अब ये इसको इंटीजर लिया, इसमें मैंने एक एलिमेंट को ऐड कर दिया ए, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग है, तो इसने बाकी सारे के सारे को स्ट्रिंग क्यों बना दिया? नाउ सी द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरे। एरे का मतलब है कि आपके जो डेटा एलिमेंट्स है वो सारे एक ही डेटा टाइप के होंगे, ठीक है, जबकि लिस्ट में अलग अलग डेटा टाइप हो सकती है। जब एरे में सारे एलिमेंट्स एक ही डेटा टाइप के हैं
तो इसने क्या किया, जो पहला एलिमेंट था वो स्ट्रिंग था, तो इसने बाकी सारे एलिमेंट्स को स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हम इसको एक बार और चेक करते हैं कि अगर मेरा पहला एलिमेंट 1 है और मैं बीच में कोई स्ट्रिंग एलिमेंट ले रही हूँ तो ये क्या है, तो व्हाट विल बी इट्स आउटपुट। अगेन सी, अब इसने क्या किया, इसने लास्ट में मैंने स्ट्रिंग लिया तो भी इसने बाकी सारे एलिमेंट को स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया। तो व्हाट इट इज डूइंग, ये को एक बाय डिफॉल्ट कह लो या आप इसको ऐसे कह लो कि डेटा को अगर उसमें या तो सारे इंटीजर्स होंगे या तो सारे फ्लोट होंगे या सारे स्ट्रिंग होंगे, तो इसने क्या किया, एक डेटा एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप का था तो उसने उसको स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, इसी तरीके से लेटर सी कि क्या ये बाकी सारे डेटा एलिमेंट्स को अगर मैं यहाँ पे 6.0 लेती हूँ तो इसका क्या आउटपुट देगा। अब देखो यहाँ पे इसको दिस हैज कंसिडर इट एज फ्लोट, अगर मैं इसको 6.1 ले लेती हूँ, फ्लोटिंग ले लेती हूँ, तो ये बाकी सारे एलिमेंट्स को भी फ्लोटिंग टाइप ले लेगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस कि जब आप, क्योंकि डेफिनेशन क्या है कि सारे डेटा एलिमेंट्स एक ही टाइप के होंगे, तो इसने एक अपर लेवल ले लिया, क्योंकि 1 कैन बी अ फ्लोट, इसको मैं फ्लोट में कैसे लिख सकती हूँ, 1.0। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं, यहाँ बीच में हम एक स्ट्रिंग लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप के हो जाएंगे, क्योंकि 1 को मैं एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर सकती हूँ, 6.1 को भी मैं एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर सकती हूँ। राइट, so each and every element has been converted to one data type. I hope numpy का मतलब क्या है, numpy is your numerical python. numpy stands for numerical python. चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। हमारे पास numpy के बेसिक फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है शेप। ठीक है, शेप क्या करेगा, शेप बताएगा कि एक एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे अगर हम देखें माय फर्स्ट एरे में कितने एलिमेंट्स है, 5, तो शेप फंक्शन के थ्रू आउटपुट आ गया 5। सेकेंड एरे जो है वो एक 2 डायमेंशनल एरे है, पहला नंबर है और उसके बाद दूसरा एलिमेंट है स्ट्रिंग है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 5। देयर आर 3 कॉलम, एक में 3 है, पहले वाले में 3 है और सेकेंड वाले में 5 है। एंड अब उसके बाद है दूसरा फंक्शन है एंडिम। एंडिम का मतलब है कि उस एरे का डायमेंशन कितना है। फर्स्ट एरे आप देखो, फर्स्ट एरे जो है दिस, ये 1 डायमेंशन है और जो सेकंड एरे है वो 2 डायमेंशन है। राइट, तो इसका आपका आ गया 2। थर्ड फंक्शन इज योर डेटा टाइप, डी टाइप। डी टाइप ऑफ दिस फंक्शन इज इंटीजर एंड डी टाइप ऑफ दिस में क्या है, मिक्स्ड कैरेक्टर्स है, मिक्स्ड स्ट्रिंग है, कुछ नंबर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो इसका डी टाइप आ गया U1। अब हम यही सारे प्रोग्राम्स एक बारी कंपाइलर पे करते हैं। हमने 3 फंक्शंस लिए हैं, शेप, एंडिंग एंड डी टाइप।
numpy है, उसको हमने एक नाम दे दिया np, और उस np से np एक ऑब्जेक्ट बन गया, उससे हम उसके बाकी फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। जैसे हमें एरे को क्रिएट करना है तो हम इसको कॉल कर रहे हैं। आप इसको बोल सकते हो कि ये इसका सिंटैक्स है, फॉर्मूला नहीं है, इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम प्रोग्राम पहला वाला है हमारा फ्रूट। अब हम इसकी फ्रूट की शेप, यहाँ पे मैं एक कुछ स्ट्रिंग लिख देती हूँ जिससे आपको पता चले। शेप ऑफ एरे फ्रूट इज, यहाँ पे देखो क्या शेप आई है इसकी, 5। 5 इज, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से दूसरा फंक्शन हमने यूज किया था वन। वन वन है, वन आया है, वन। टेबल लगा देते हैं डायमेंशन। तीसरा फंक्शन हमने ये देखा था कि इसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप, डेटा टाइप के लिए मुझे एरे को लेना है, एरे डॉट डी टाइप। यहाँ पे इसका क्या टाइप आ गया, U8। अब देखो ये इस U8 का क्या मतलब है। U8 इट इज अ यूनिकोड कैरेक्टर। 8 कैसे आया, यहाँ पे मैक्सिमम कैरेक्टर्स यहाँ पे 8 है, चेरीज में 8 है, तो इसने कितनी स्पेस एलोकेट कर दी, सबको 8 कैरेक्टर्स की स्पेस एलोकेट कर दी। ठीक है, अब अगर हम इसमें से ये मैक्सिमम 8 वाला हटा देते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट आया है, नंबर शेप आ गई 4, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, डायमेंशन 1, डेटा टाइप क्या हो गया, U7। यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हैं, बेरीज में है 7 कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे जो इसका डेटा टाइप हो गया वो U7 हो गया। अब इसमें हम एक और कैरेक्टर यूज कर लेते हैं, एक और डेटा एलिमेंट यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो क्या इसका आउटपुट आएगा, ये एरे प्रिंट हो गई, नंबर ऑफ एलिमेंट, शेप से क्या आउटपुट आ गया, कितने एलिमेंट्स है, 5 है यहाँ पे, देयर आर 5 फ्रूट, डायमेंशन 1, डेटा टाइप क्या आ गया, U11। 11 कैसे आया, पॉमीग्रेनेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं यहाँ पे पॉमीग्रेनेट में, और कितने हैं 11, तो उसका डेटा टाइप हो गया U11। राइट, ये वाला प्रोग्राम आप लोग एक बार इसको अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे, जहाँ पे भी आप करो, एक बार इसको रन करो और फिर एक बार देखो कि क्या आउटपुट आ रहा है। थोड़े से हर किसी में कुछ ना कुछ चेंजेस करो, जैसे यहाँ पे मैंने पॉमीग्रेनेट डाल दिया, अब मैं यहाँ पे कुछ और डाल देती हूँ, एक और स्ट्रिंग ले लेती हूँ, दीज आर फ्रूट। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो गए, यहाँ पे आप देखो यूनिकोड कैरेक्टर क्या हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आ गया U35। तो आप ये देखो कि किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन हो सकता है, आपको एक प्रोग्राम दे दिया,
इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, आपको पूछा जा सकता है कि आपको ये प्रोग्राम दे दिया और इस प्रोग्राम का आपको आउटपुट लिखना है। तो आउटपुट में शेप के साथ नंबर ऑफ एलिमेंट, डायमेंशन 1 और डेटा टाइप यू, राइट। डेटा टाइप डायमेंशन होता है उसमें कितने रोज एंड कॉलम्स हैं। 1 डायमेंशन एक ही लाइन है। 2 डायमेंशन मतलब आपकी 2 लाइन हो गई। जैसे आप लोग मैं आपको एक बार और 2 डायमेंशन का मतलब हो गया कि आपके पास 2 लाइन हो गई, ठीक है। एक में आपके और हर लाइन में आपके पास 5-5 एलिमेंट्स हो गए। इट इज लाइक 1 रोज एंड कॉलम। 2 डायमेंशन होता है आपका रोज एंड कॉलम। 3 डायमेंशन हो गया जैसे आपका रूम हो गया। आप जिस भी कमरे में रहते हो उसमें 3 डायमेंशन हैं। एक उसकी लेंथ है, एक उसका ब्रेथ है, एक उसकी हाइट है, ठीक है। मेजरमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है एक स्टूडेंट ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि U11 कैसे आया। U11 आपका आया यूनिकोड, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, वो इसको 11 कैरेक्टर्स में ले रहा है, तो उसने 11 कैरेक्टर्स की एक मेमोरी स्पेस दे दी। 12 आ रहे हैं तो 12 कैरेक्टर्स ले लिए, 32 आ रहे हैं तो 32 कैरेक्टर्स ले लिए, 64 आ रहे हैं तो उसने एक मैक्सिमम स्पेस ले ली जो कि सबको उसने एलोकेट कर दी, राइट। दूसरा एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सो द स्ट्रिंग इज हैविंग मोर प्रेसिडेंस ओवर इंटीजर एंड फ्लोट। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, वो सारे डेटा एलिमेंट्स को किस डेटा टाइप में कंसिडर किया जा सकता है जिससे कि डेटा लॉस ना हो। अब अगर मैं स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करूंगी तो इसमें क्या होगा, डेटा लॉस होगा। अगर मैं नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अमाउंट है 1000, उसको मैं अगर स्ट्रिंग बनाती हूँ 1000 बनाती हूँ तो उसमें डेटा लॉस नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जिस चीज से डेटा लॉस नहीं हो रहा, हम उसमें उसके ऊपर वाले में या उसके हायर उसमें या उसके हायर प्रेसिडेंस में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। हम इन द सेंस लाइब्रेरी उसको कन्वर्ट कर रही है। तो आप ये कह सकते हो कि अभी स्ट्रिंग पहले वो डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, अगर स्ट्रिंग में नहीं है तो ये फ्लोट में एंड देन इंटीजर में। स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रही है आप लोगों को? एक सेकेंड। अब स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये वाला प्रोग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने इसी की बात की थी कि ये हमारे पास कुछ डेटा एलिमेंट्स है। शेप से आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, डायमेंशन से कितने डायमेंशन है, और डेटा टाइप से। अब यहाँ देखो सबसे बड़ा जो एलिमेंट है दिस इज द बिगेस्ट एलिमेंट, इसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उसके हिसाब से यहाँ पे 35 आ गया। अभी हम एक 2 डायमेंशन वाला क्वेश्चन और करेंगे, जैसे ये 1 डायमेंशन है क्योंकि इसमें एक ही डायमेंशन है, एक ही लाइन में डेटा सेट अरेंज हो गया। जब हम उसको 2 डायमेंशन में मतलब रोज में, कॉलम्स में या टेबल की फॉर्मेट में करेंगे तो वो 2 डायमेंशन में हो जाएगा।
चलिए अब एक और इसमें हम प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे हम 2 डायमेंशन एरे ले लेते हैं, और पहले हम एक और करते हैं मार्क। ठीक है, 1 डायमेंशन एरे लेते हैं मार्क np.array। हमारे पास मार्क्स हैं 26, 35, 31, 21, 10, 13, 45। अब इस मार्क का क्या शेप रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, किस डायमेंशन का है, और इसका क्या डेटा टाइप है। तो ये आपका एरे प्रिंट होके आ गया। शेप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इसका डेटा टाइप है इंटीजर 64। सारे के सारे एलिमेंट्स इंटीजर हैं, तो इसका हो गया आपका इंटीजर 64। अब आपको एक और फंक्शन है यहाँ पे, देयर इज अ डिफरेंस डी टाइप एंड टाइप। इस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो जो इसका डेटा, यहाँ पे जो इसका टाइप आया है वो आया है numpy.nd array। ये आपका 1 डायमेंशन है। इस प्रोग्राम को आप लोग करो, नोट डाउन करो एक बारी अपनी कॉपी में या कंप्यूटर में। ठीक है, और एक बारी इसको रन करो, और थोड़ा सा इसमें चेंज करो। यहाँ पे 56 है, 56 का 78 करो, 98 और नंबर्स ऐड करो, और देखो कि क्या आउटपुट आ रहा है। जो डेटा टाइप है इंटू 64, इट इज योर इंटीजर। इंटीजर इंटू 64 इज इंटीजर, आपके नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए। तो हम इसमें कर लेते हैं 26.5, 33.5, 31.88। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इट्स आउटपुट। यहाँ पे हमने देखो फ्लोटिंग नंबर्स ले लिए, 26.5, 3.5, 31.88। नाउ व्हाट इज इट्स आउटपुट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सारा का सारा डेटा फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो गया। सेव, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 9, डायमेंशन एंडिम, एंडिम कितना है 1, डेटा टाइप क्या है फ्लोट 64। फ्लोट हो गया आपका फ्लोटिंग डेटा टाइप, मतलब आपके इसमें डेसिमल्स आ गए।
अब हम इसमें आगे चलते हुए एक 2 डायमेंशन का एरे क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने पहले एक लाइब्रेरी क्रिएट करी, नमपाई सॉरी लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया। अब हम एक 2 डायमेंशन एरे बना रहे हैं। सेकेंड एरे np डॉट एरे, पहला डायमेंशन 1 2 3, दूसरा डायमेंशन एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं 4 5 6। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। प्रिंट सेकेंड एरे, यहाँ पे आपकी एरर आई है, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। तो आप ये देखो, ये जो आया है ये किस तरीके से आया है, दो एक टेबल की तरह से आया है जिसमें 2 रोज हैं, एक ये वाली रो है और एक ये वाली रो है, और 3 कॉलम। पहला कॉलम में 1 एंड 4 है, दूसरे कॉलम में 2 एंड 5 है, तीसरे कॉलम में 3 एंड 6 है। अब हम इसका शेप देखते हैं कि व्हाट इज इट शेप। रेंज सेकंड एरे डॉट शेप, क्या शेप आई है 2 3, मीन पहला 2 रोज है, ठीक है, और 3 कॉलम्स है। तो ये क्या दे रहा है, 2 3 का मतलब हो गया कि ये 2 by 3 का 2 डायमेंशनल एरे है। अब इसमें नंबर ऑफ डायमेंशन निकालते हैं। सेकंड और एक कॉलम है। तीसरा हमको फंक्शन यूज करना था डेटा टाइप। हमारे एरे का नाम है सेकंड एरे डॉट डी टाइप। तो अब ये डी टाइप जो है सारे इंटीजर्स हैं, तो इसका डेटा टाइप आ गया इंटीजर 64। तो फिर पूछा कि ये यहाँ पे 64 क्या है। 64 बच्चे, 64 मीन 64 बिट, नंबर ऑफ बिट। जब हम कंप्यूटर की भाषा में बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर एक बाइनरी फॉर्मेट में बात करता है, 010101। अब जब वो 0101 की बात करता है, अगर मैं बात करूं
जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे थ्री, ठीक है, थ्री को मुझे कितने बिट्स में लिख सकती हूँ मैं? थ्री को मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं 4 बिट्स की बात करूँ, 2 बिट्स की बात करूँ तो 1 1 लिख सकती हूँ। 3 बिट्स की बात करूँ तो मैं इसको 0 लगा के, ये 3 बिट्स हो गए। देखो 3 बिट्स मतलब 1 2 3, यहाँ पे 3 स्पेसेस हो गए। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इसको 5 बिट्स में लिखने की, तो ये 5 बिट्स में हो गए, बाकी सारी चीजें 0 हो गई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि आप थ्री को लिखो 10 बिट्स में, तो थ्री का बाइनरी तो 1 1 हो गया। अब 10 बिट्स में करने के लिए बाकी सारे के सारे 8 डिजिट को मुझे 0 करना होगा। तो अब ये देखो ये कितने बिट्स हो गए, 3 3 6, ये आपका 10 बिट का इंटीजर हो गया। ठीक है, जब मैं 64 की बात कर रही हूँ तो 64 बिट का मतलब हो गया कि मैं थ्री को 6 बिट्स में कितने बिट्स यूज कर रही हूँ, मैं कितने जीरोज एंड वंस यूज कर रही हूँ, राइट, कितने जीरोज एंड वंस हैं। 32 बिट में आप ये देखो, जब मैं 2 बिट की बात कर रही हूँ तो 2 बिट में सिर्फ हम 2 नंबर्स लिख सकते हैं। जब जैसे ये नंबर ऑफ बिट्स बढ़ते हैं, हमारे इंटीजर्स की जो लिस्ट है, या जो इंटीजर्स का को जो काउंट है, जो इंटीजर्स की मैक्सिमम लिमिट है, वो इंक्रीज होती जाती है। 32 बिट के केस में हमारे पास हो गया 2 to the power 32 एलिमेंट, मतलब 2 to the power 32 कितना होता है? यस, अगर फ्लोट है तो फ्लोट 64 का मतलब हो गया कि उसमें 64 बिट्स हो गए। ठीक है, 64 बिट्स में हम उसको फ्लोटिंग में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज एंड वन। चलिए अब आगे एक और चलते हैं, एक और सेकेंड एरे बनाते हैं जिसमें हम स्टूडेंट का नाम और मार्क्स लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट के नाम ले रही हूँ, एलिस। दूसरा स्टूडेंट हो गया बॉब। तीसरा स्टूडेंट हो गया चार्ल्स। चौथा स्टूडेंट ले लिया मैंने डेविड, और इनके मार्क्स ले लिए। एलिस के मार्क्स आए हैं 78, बॉब के 87, और चार्ल्स के आए हैं 98। तो क्या ये प्रोग्राम रन करेगा? लेट अस सी दिस फर्स्ट। आप ये देखो, ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। क्यों रन नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स। 2 डायमेंशन एरे है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, होमोजीनियस मतलब जितने फर्स्ट रो में एलिमेंट्स उतने ही सेकंड रो में होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे डेविड के मार्क्स लगा देती हूँ। नाउ दिस प्रोग्राम हैज बीन रन। यहाँ पे देखो, टेक 2 by 4, 2 by 4 का मतलब हो गया 2 rows 4 columns, 2 dimensions, and it is a Unicode character with 21। अब एक और बात करते हैं, हम इसमें एक और डायमेंशन ले लेते हैं, इन सबकी ग्रेड ले लेते हैं, ए, बी, सी, और डेविड का हो गया डी। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ डायमेंशन इज 2। अभी भी यहाँ पे 2 डायमेंशन आया है क्योंकि ये आपका 2 डायमेंशन हो गया। यहाँ पे आपकी 3 रोज हो गई और 4 कॉलम्स हो गए। अगर मैं यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देती हूँ, तो ये आपका 3 डायमेंशन हो गया। 3 डायमेंशन मतलब एक एक डायमेंशन में एक साइड में सारे बच्चों के नाम हैं, दूसरे डायमेंशन में दूसरी साइड में बच्चों के मार्क्स हैं, और तीसरी साइड में उसमें उनके ग्रेड्स हैं। ठीक है, तो ये आपका
प्रोग्राम हो गया 2 डायमेंशन एरे, 3 डायमेंशन एरे, आप कैसे शेप, डायमेंशन और डेटा टाइप को यूज कर सकते हो। आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि इस लाइन का क्या आउटपुट रहेगा। इस लाइन का आउटपुट रहेगा 3। आपको ये नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टिंग में काउंट करने हैं। यहाँ पे अगर 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं स्टार्टिंग में, तो लास्ट में भी 3 स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज हो रहा है, ठीक है। और फिर उसका जो डायमेंशन हो गया 3 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको 2 लूंगी तो इसका डायमेंशन 2 हो गया। शेप क्या हो गई, इसकी शेप देखो चेंज हो गई। पहला डायमेंशन, उसके अंदर 3/4, इसकी शेप 3 डायमेंशन के हिसाब से चेंज हो गई। ये वाला प्रोग्राम आप लोग नोट डाउन करो इसको। सॉरी, अभी हम एक और फंक्शन की बात कर रहे थे, साइज। साइज का मतलब हो गया कि इस एरे में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। टोटल एलिमेंट 4 स्टूडेंट्स के नाम हो गए, 4 इन सारे बच्चों के मार्क्स हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 नाम हो गए, 4 मार्क्स हो गए, 4 ग्रेड्स हो गए। तो 4 + 4 + 4 टोटल हो गया 12। साइज आ गया 12। कॉलम्स हैं, ठीक है। एक क्लासरूम में फोर क्लासरूम में कॉलम 1 3 4 का मतलब हो गया कि 1 पहला डायमेंशन देखो 1 हो गया। एक तरह से आप एक रूम को मान के चलो कि आपके पास 1 एक एक साइड में आपका, एक तरह से आप ये मान के चलो कि फर्स्ट रूम हो गया, रूम नंबर 1। उस रूम नंबर 1 में 3 रोज हो गई और
4 कॉलम्स हो गए। तो इसमें कितने डायमेंशन हो गए? ठीक है, तो अब इसमें कितने स्टूडेंट्स आ गए? इस वाले का साइज क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, कितना हो गया? 12, राइट। अब अगर मैं शेप की बात करूं, शेप हो गया 2 रूम, ठीक है, और हर रूम में 3 रोज हैं और हर रो में 4 टेबल्स हैं, हर रो में 4 चेयर्स हैं। तो ये देखो, हम मुझे इसको कैसे शो करना पड़ेगा? 2 3 4, तो ये 3 डायमेंशन हो गया, राइट। 1 2 3 4, 3 डायमेंशन हो गया। अब इसमें इसका साइज क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 24 स्टूडेंट। कितने बच्चे आ जाएंगे यहाँ पे? 24 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब अगर मैं 4 डायमेंशन की बात करूं, तो शेप 4 स्कूल्स हो गए, ठीक है, हर स्कूल में 5 रूम्स हो गए, हर रूम में 6 रोज हो गई, और हर रो में 7 चेयर्स हो गई। तो ये आप देखो 4 डायमेंशन हो गए, ठीक है। अब इसमें साइज क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, इसका साइज क्या हो जाएगा? 840, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये देखो, आप इस तरह से इसके डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। अभी तो मैं एक बात कर रही थी सिर्फ 7 चेयर्स की। अब बच्चे बढ़ गए तो मैंने क्या किया? रोज बढ़ा दी, उसको 2 डायमेंशन कर दिया, 6 रोज लगा दी, 7 चेयर्स लगा दी। अब बच्चे और बढ़ गए, मैंने उसको रूम्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर और बच्चे बढ़ गए तो मैंने स्कूल्स में बना दिया। तो इट इज लाइक अ डायमेंशन, हम उसका डायमेंशन चेंज कर रहे हैं, डायमेंशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आई एम गिविंग यू अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट, फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं।
हेलो 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 कमिंग बैक, राइट। तो कमिंग बैक, अब हम आगे चलते हैं। हमने फर्स्ट फर्स्ट डायमेंशन एरे कर लिया, सेकंड डायमेंशन कर लिया, ये हमने कर लिया। अच्छा, तो अभी हम डेटा टाइप की जब हम बात कर रहे थे, जैसे हमने देखा डेटा टाइप कौन सा है, एक तो स्ट्रिंग हो गया, इसमें आपका टेक्स्ट डेटा हो गया, ठीक है, कोई भी है जो स्ट्रिंग में है। फिर आपका डेटा टाइप हो गया इंटीजर, 1 2 3 4 -1 2 3 4। फिर आपका डेटा टाइप हो गया फ्लोट, ठीक है। फ्लोट के बाद आपके पास फाइल,
यस नो है, वन है, आंसर क्या होगा, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें अगर कि आर यू प्रेजेंट टुडे, तो या तो ये प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। कोई भी स्टूडेंट या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। तो इसमें दो तरह का डेटा है, या तो यस या नो। ऐसे डेटा को हम बोलते हैं बूलियन। एक और डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आपके आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स वन, दिस जे, ये जो जे है, इस जे का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, जे, कुछ लोग इसको जे बोलते हैं, कुछ लोग इसको आयोटा बोलते हैं। आयोटा मतलब आई। ठीक है, कुछ लोग इसको आयोटा बोलते हैं। इसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -1। जहां पे भी ये आई या जे, कुछ लोग जे बोलते हैं, कुछ लोग आयोटा बोलते हैं, आई लिखते हैं, दोनों ही चीजें ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। अब थोड़ा सा और फर्दर एक्सटेंड करते हैं, तो ये कुछ लेटर्स है। इंटीजर के लिए आई यूज करते हैं, बूलियन के लिए बी, नमपाई में जो डेटा टाइप है, अनसाइंड इंटीजर इज यू, फ्लोट के लिए एफ, कॉम्प्लेक्स फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आ जाते हैं तो सी, टाइम डेल्टा, टाइम के लिए एम, डेट टाइम के लिए कैपिटल एम। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द कैरेक्टर फॉर डेट टाइम, डेट टाइम के लिए स्मॉल एम है कि कैपिटल एम है, तो आंसर क्या होगा, कैपिटल एम। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए क्या कैरेक्टर यूज किया है, एस। यूनिकोड के लिए आपने देखा यू आ रहा था, U11, U32, U64, तो यूनिकोड के लिए यू। और कुछ अलग ही वॉइड, वॉइड मतलब ब्लैंक मेमोरी टाइप, कोई भी ब्लैंक है, कुछ भी डेटा नहीं है या ब्लैंक है, मेमोरी का चंक है, मेमोरी का कुछ ब्लॉक है, तो उसके लिए वी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स हो गए नमपाई के लिए। तो ये अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए। वी हैव क्रिएटेड वन डायमेंशनल एरे फॉर फ्रूट का डेटा टाइप फाइंड आउट किया, हमने टू डायमेंशनल बनाया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रिएट टू एरेज। आप दो एरे बनाओ, फर्स्ट एरे, सेकेंड एरे, और उसमें ये अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल ऑपरेशंस करो। ठीक है, तो दिस इज योर प्रोग्राम। तो हम कंपाइलर पे करते हैं साथ ही साथ। ठीक है, let's start on the compiler. तो मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ठीक है, फाइन। तो अब हम बात कर रहे थे इंपोर्ट numpy एज, यहाँ पे मैं एनपी की जगह कुछ और नाम ले लेती हूँ, लेट अस से एनडी। ठीक है, अब पहला एरे बना रही हूँ, एनडी डॉट एरे, स्क्वायर ब्रैकेट, लेट अस से 100, 200, 300, 400, 500। सेकेंड एरे बना रही हूँ, एनडी डॉट एरे, 10, 20, 30, 40, 50। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सम करना है।
तो प्रिंट एडिशन पे क्या आ रहा है, फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, प्लस ऑपरेटर यूज किया है। यहाँ पे आप देखो ये दोनों एलिमेंट वाइज ऐड होके आउटपुट आ गया। इसी तरह से अगर मैं सब्ट्रैक्ट की बात करूं, प्रिंट मुझे डिफरेंस चाहिए, सब्ट्रैक्ट मैं क्या कर रही हूँ, मेरा पहला एरे है फर्स्ट, दूसरा एरे है सेकंड, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, माइनस करना है, तो मैंने माइनस का साइन लगाया सेकंड। अब ये जो है माइनस होके आ गया, राइट। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई को आंसर को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहला एरे मल्टीप्लाई के लिए क्या साइन है, स्टार, मल्टीप्लाई सेकेंड। ये देखो मल्टीप्लाई होके आ गया, 100 इंटू 10, 200 इंटू 20, 300 इंटू 30, 400 इंटू 40। ये क्या हो रहा है, हम इसको बोलते हैं एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। ठीक है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई होके आंसर आ रहा है। अब इसी तरह से मुझे अगर डिवाइड करना है, तो डिवाइड का क्या होता है, मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। ठीक है, डिवाइड देखो, डिवाइड का रिजल्ट किस में आया है, फ्लोटिंग में आया है, राइट। अगर मैं इसके डेटा टाइप की बात करूंगी डिवीजन के, तो ये फ्लोटिंग में आया है। फ्लोटिंग में क्यों आया है, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को किसी से डिवाइड करें तो वो डेसिमल में हो सकता है, वो पॉइंट्स में हो सकता है, इसलिए आंसर यहाँ पे डिवाइड में आया है। अब मैं अगर रिमाइंडर की बात करूं, प्रिंट मॉड ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट मॉड सेकेंड। तो 100 को 10 से डिवाइड करी हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है 0। इसी तरह से सपोज मैं इसको 101 ले लेती हूँ, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, राइट। अब देखो जो भी एडिशन, जो भी ऑपरेशन हो रहा है, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, वो एलिमेंट वाइज हो रहा है, एक एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट। तीसरा ऑपरेशन, एक और ऑपरेशन हम करते हैं, एक्सपोनेंट। फर्स्ट स्टार स्टार सेकेंड, इसका मतलब हो गया 100 टू दी पावर 10, 200 टू दी पावर 20, ये सब पावर में चला जाएगा। ये आपका देखो पावर में आंसर आ गया, राइट। इसी तरीके से ये आपका एक जो ये आपका क्वेश्चन था कि आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे कर सकते हो दो एरेज में। आपने पहला एरे बनाया, दूसरा एरे बनाया, और उसमें सिंपल जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस स्टार, उसको यूज किया। ये वाला आप लोग एक बार ये प्रोग्राम इसको करके देखो, कुछ इश्यू है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। और मुझे इस प्रोग्राम को, मुझे निकालना है मीन। ठीक है,
प्रिंट एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालना है, मुझे सपोज फर्स्ट का एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट डॉट मीन। यहाँ पे आपको ये दो ब्रैकेट ऐसे लगाने पड़ेंगे, ये आपका एवरेज आ गया। ठीक है, मीडियन फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे, प्रिंट फर्स्ट एरे का मीडियन, ये दो बारी ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, अब देखिए मीडियन जो है नमपाई में नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें दूसरी लाइब्रेरी को यूज करनी होगी, जो कि हम नेक्स्ट, सॉरी, मीडियन के लिए हम इस तरीके से इसको यूज नहीं करेंगे। जब हमको मीडियन फंक्शन यूज करना है तो हम इसको डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। इसी तरीके से हम एक और यूज हम निकाल सकते हैं इसका सम। सम मतलब टोटल। ठीक है, टोटल के लिए फर्स्ट डॉट सम, तो ये आपका सम आ गया 1500। ये जो फर्स्ट एरे में एलिमेंट्स है इनका टोटल आ गया 1500। अब हम ये बात कर रहे थे मीडियन, कैसे निकालेंगे। ये जो नमपाई की लाइब्रेरी है एनडी, एनडी लेंगे, एनडी डॉट मीडियन, किसका निकालना है, फर्स्ट एरे का, तो ये इसका मीडियन आ गया। ठीक है, this is how you can use the inbuilt functions mean, median, sum। आप लॉग निकाल सकते हो, आप एक्सपोनेंट निकाल सकते हो। इस तरीके से आप एरेज के साथ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस कर सकते हो, राइट। तो अब इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैंडम नंबर्स। ठीक है, कारण फाइव आएगा, सिक्स आएगा, हम सिर्फ गेस करते हैं कि अब शायद थ्री आएगा या अब शायद सिक्स आएगा, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता। कई बार सही होता है, कई बार नहीं होता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं रैंडम। इसी तरीके से जब हम प्लेइंग कार्ड को शफल कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, तो हमें नहीं पता अब कौन सा प्लेइंग कार्ड आएगा, राइट। तो इट मीन्स वी आर शफलिंग इट, इट इज रैंडम। ना, अगर किसी रैंडम नंबर को हम, अब जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर तो किसी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से चलता है, उसको हमने प्रोग्राम किया है। जब हमने उसको प्रोग्राम किया है उसका मतलब हमने उसको कुछ स्टेप्स बताए हैं। जब हमने उसको कुछ स्टेप्स बताए हैं तो इसका मतलब उस को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। अब वो स्टेप्स तो फिक्स है, जब वो कुछ फंक्शन, सॉरी
अब जो हमारा जैसे रैंडम फंक्शन हमारे पास हो गए रैंड इन, रैंड एंड रैंड एन। फ्लोटिंग नहीं होता है, ठीक है, ना ही डाइस में ए बी सी डी आता है। डाइस में 1 to 6 है तो 1 to 6 आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ रैंडम इंटीजर्स की, कि अगर मैं ये नहीं देती हूँ तो क्या होगा, 1 से लेकर 6 पर ले लेगा ये, ठीक है। दूसरा फंक्शन है RAND, इसका मतलब हो गया रियल वैल्यू। नाउ व्हाट इज रियल वैल्यूज? रियल वैल्यूज मतलब डेसिमल, किसके बीच में, 0 and 1। जब हम 0 and 1 की बात कर रहे हैं तो 0 and 1 के बीच में तो डेसिमल्स ही आएंगे सारे। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, RAND, रैंड फंक्शन। तीसरा फंक्शन है रैंड एन, RAND n, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि इसमें भी रियल वैल्यूज आएंगे, लेकिन ये जो रियल वैल्यूज होंगी ये 2 डायमेंशन होगी, कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ये भी हम इसका एक प्रोग्राम करते हैं। इंपोर्ट किया हमने numpy एज एनपी। दूसरा हमने इंपोर्ट किया चलिए अभी हम बिना इंपोर्ट किए चलते हैं। अब हमको पहले निकालना है रैंडम नंबर, रैंडम इंटीजर्स निकालने हैं। हमारा पहला फंक्शन था रैंड इंट। रैंडम इंटीजर्स के लिए numpy की लाइब्रेरी है, कौन सा मॉड्यूल है, रैंडम, ठीक है। फंक्शन कौन सा था, RAND INT। चलिए अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट रैंडम इंटीजर। अब देखिए एरर आई है, इट टेक्स एट लीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट, मतलब यहाँ पे कम से कम हमको पहला पैरामीटर देना पड़ेगा। तो मैं दे देती हूँ लोएस्ट वैल्यू इज 1। अब इसको रन करते हैं तो रैंडमली क्या आ गया, 0। दोबारा से रन करते हैं, 0, ठीक है। अब हमें इसमें हाईएस्ट वैल्यू दे देती हूँ, मान लीजिए 10। एक बार रन किया 5, दूसरी बार रन किया 3, तीसरी बार रन किया 2। अब अगली बार क्या नंबर आएगा, क्या आप में से कोई गेस कर सकता है? 1 और 10 के बीच में कोई नंबर आएगा। कैन एनीवन गेस? हम लोग नहीं गेस कर सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रैंडम। अब मैं अगर बात करूं, इसका तीसरा पैरामीटर क्या था, यहाँ पे मैं साइज दे देती हूँ, दे दिया, ठीक है। तो 2 में क्या होगा, 2 2 करके डिफरेंस आएगा।
दो रैंडम नंबर्स आ गए, 3 5, दो रैंडम नंबर्स आ गए। मैं यहाँ पे साइज दे दूँ 20, तो यहाँ देखो 20 रैंडम नंबर्स आ गए। जब 20 की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे कुछ नंबर्स रिपीट हुए हैं। क्यों रिपीट हुए? क्योंकि 1 से लेकर 10 तक तो 10 ही नंबर्स है। और मैं 20 रैंडम नंबर्स ले रही हूँ, तो ये यहाँ पे 20 रैंडम नंबर्स आ गए। कुछ एक बार ही होगा, कुछ 2 बार ही आएगा, कुछ 3 बार ही आएगा। इट इज अनप्रिडिक्टेबल, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। मैं इसको एक बार ही और रन करती हूँ। अब कुछ अलग ही नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया रैंडम इंटीजर। अब अगर मुझे रैंडम फ्लोट निकालने हैं, रियल वैल्यूज निकालनी है, क्या फॉर्मूला था, क्या फंक्शन था? np डॉट रैंडम डॉट rand। रैंडम फ्लोट। देखो ये यहाँ पे क्या आया, डेसिमल नंबर आया है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। दोबारा से रन करते हैं, कुछ अलग ही नंबर आया है। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि मुझे 2/3 का एक चाहिए, 2 रोज एंड 3 कॉलम। देखो 2 रोज आ गई और 3 कॉलम्स आ गए। पहला कॉलम, ये पहला कॉलम है, फिर दूसरा कॉलम है और फिर तीसरा कॉलम है। मैं अगर बात करूं कि मुझे 4/7 का चाहिए, आप देखो यहाँ पे 4 रोज आ गई, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, 4 रोज आ गई और 7 कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, 6 एंड 7। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे 0 और उसके बीच में है। चलिए अब एक और मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर मुझे ये फ्लोटिंग नंबर्स चाहिए, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो कैसे नंबर्स आएंगे? 51, 69, देखो 51, 27, 90, 62, मतलब कुछ भी रैंडमली आ रहा है, लेकिन इसमें 100 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। अब हमारा तीसरा फंक्शन था रैंडम n, m रोज एंड कॉलम। और रैंडम rand n random dot random print देखो ये जो ऊपर वाला है ये भी 2/5 है, ठीक है। 2 रोज 5 कॉलम, इसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव है 0 और 1 के बीच में। रैंड एन वाले फंक्शन में क्या डिफरेंस है कि कुछ प्लस की वैल्यूज है, कुछ माइनस की वैल्यूज है। कुछ माइनस में देखो -1, कुछ प्लस है 0, कुछ माइनस में है, कुछ प्लस में है। और ये सारी की सारी वैल्यूज 0 और 1 के बीच में नहीं है। ये जो -1 है ये 0 और 1 के बीच में नहीं आती है, जबकि रैंड फंक्शन में 0 एंड 1 के बीच में है और रैंड एन में प्लस या माइनस की वैल्यूज है। तो ये आपके 3 रैंडम फंक्शंस हो गए। आप इसको नोट डाउन कर लो, इसको अपनी कॉपी में लिख लो।
एक बार अपने सिस्टम पे इसको रन कर लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हम्म, अब हम बात करते हैं रीशेपिंग, मतलब हम उसकी शेप चेंज करते हैं। मैंने अभी सारी की सारी चेयर्स को एक ही लाइन में लगा दिया। अब मैं 20 चेयर्स है, मैंने 20 चेयर्स को एक ही लाइन में लगा दिया, इट मीन्स वन डायमेंशन। अब मैं 20 चेयर्स को 2 rows एंड 10 कॉलम्स में लगा रही हूँ, इट मीन्स इट इज अ 2 डायमेंशन। क्या मैं 20 चेयर्स को 4x5 की फॉर्म में लगा सकती हूँ? 4 rows, 5 डायमेंशन। 20 चेयर्स को मैं 3 डायमेंशन में कैसे कर सकती हूँ? 2 रूम्स में ले लिया उसको, ठीक है, 2 रूम्स में, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स में उसको अरेंज कर दिया, तो इसको बोलते हैं रीशेपिंग। आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में एरे को चेंज कर दो, दैट इज कॉल्ड एज रीशेपिंग। ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि रोज एंड कॉलम्स को स्विच करना, ठीक है। जो बच्चे कॉलम वाइज बैठे थे उनको रो वाइज बैठा दो, जो बच्चे रो वाइज बैठे थे उनको कॉलम वाइज बैठा दो, इसको कहते हैं हम रीशेपिंग करना। तो ये आपका क्वेश्चन है। आप देखिए आपके पास ये 1 डायमेंशन है, अब मैं इसको 2 डायमेंशन में कर रही हूँ, मतलब 2 rows और 4 कॉलम्स में मैंने इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया, तो ये आपका हो गया रीशेप। ट्रांसपोज के केस में मैंने क्या किया, ये जो इस तरीके से था, ये रहा रोज और ये रहे आपके कॉलम्स। आप देखो, ये 1 2 3, ठीक है। अब ये रोज से, सॉरी, कॉलम से ये रोज में आ गए, ठीक है, चेंज हो गया। ये 4 5 6 ऐसे हॉरिजॉन्टली अरेंज थे और अब ये वर्टिकली अरेंज हो गए। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है? ट्रांसपोज फंक्शन। रीशेप के लिए कौन सा फंक्शन है? रीशेप। इसको अगर हम प्रोग्राम में करते हैं, मेरे पास ये 20 इंटीजर्स हैं, अब मुझे इसे रीशेप करना है, ठीक है। फ्रेंड, ये जो रैंडम इंटीजर्स हैं, डॉट रीशेप, किस फॉर्म में रीशेप करना है? 4x5। ये देखो आप, 4 rows हो गई, 1 2 3, 4 rows हो गई और 5 कॉलम्स हो गए, ठीक है। ये 20 चेयर्स एक लाइन में अरेंज थी, अब इनको मैंने 4x5 की फॉर्म में अरेंज कर दिया, रीशेप कर दिया। अब इसी को हम ट्रांसपोज करते हैं। इसको मैं एक वेरिएबल में यूज कर लेती हूँ, सेकेंड इक्वल टू दिस, प्रिंट सेकेंड डॉट ट्रांसपोज।
अब देखो यहाँ पे ये रैंडम नंबर्स थे, ठीक है, एक ही लाइन में। इनको मैंने 4/5 की फॉर्म में रीशेप किया। कौन से फंक्शन से? रीशेप फंक्शन से। अब इसको रोज को कॉलम्स में चेंज किया, कॉलम्स को रोज में चेंज किया। जो यहाँ पे 16472 है वो यहाँ पे आ गया 16472, ठीक है। यहाँ पे ये 68219 था, ये ऐसे आ गया वर्टिकली। तो ये आपके दो फंक्शंस हो गए, रीशेप, इस तरीके से आप उनका डायमेंशन चेंज कर रहे हो। दूसरा हो गया ट्रांसपोज, जिससे आप उनके एक्सेस को स्वैप कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, या रोज को कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर रहे हो। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? नो क्वेश्चन। तो ऐसी बूलियन इंडेक्सिंग, व्हाट इज फैंसी इंडेक्सिंग, ये हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। नाउ अभी तक किसी को कोई भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क। शेप का सही तो हो गया, दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन ऑफ यू? So there is no question. So I am finishing now it of the class here. मैं आपको अभी पीपीटी शेयर कर देती हूँ, राइट।